Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23421050. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. All right. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद लालिमा जी। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है, इसलिए हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और 23421050 पर फोन करके आप आज सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। और अभी सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं हमारी सहयोगी लालिमा नेजा डेंग। Dhanyavad Vibhuti ji, and before I start, let me also say and tell our viewers, listeners, that to answer our listeners' queries, we are joined by our senior journalist Shishir Sinha. Namaskar Shishir ji. Namaskar, thank you very much. Let's begin with the headlines. India will surpass US to become world's second largest economy by 2075, says Goldman Sachs. Key domestic indices close with marginal gains amid mixed global cues. Sensex ends near 65,350 mark, while Nifty settles above 19,350 level. And rupee appreciates 17 paise to close at 82 rupees and 57 paise against the US dollar. गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 2075 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 65,350 अंकों के करीब बंद, निफ्टी 19,350 के स्तर के ऊपर बंद और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 57 पैसे पर बंद। और सबसे पहले शेयर बाजार का हाल जानते हैं। तो लालिमा जी, आप एक बार अंग्रेजी में शेयर बाजार का हाल बता दें। उससे पहले हम इस खबर पर जाएंगे जो कि ये इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने हमें बताया है। विभूति जी, इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स has said that India is poised to become the world's second largest economy by 2075, crossing Japan, Germany and the US. With a population of 1.4 billion people, India's GDP is estimated to expand remarkably, reaching $52.5 trillion, surpassing the US GDP projection. In a recent report, Goldman Sachs said, on top of a burgeoning population, driving the forecast is India's progress in innovation and technology, higher capital investment, and rising worker productivity. It said this is an appropriate time for the private sector to scale up on creating capacity in manufacturing and services in order to generate more jobs and absorb the large labor force. Labor force participation, a vast pool of talent and a working age population ratio are a few of the factors set to make India the second largest economy in the world by 2075. According to 85 sovereign wealth funds and 57 central banks representing $21 trillion in assets, India is now the number one emerging market to invest in.
Invesco Global Sovereign Asset Management Study said among the emerging markets, India has piqued sovereign investors' interest, overtaking China. It said India exemplifies the attributes sought by sovereign investors. Well, we started with a real positive and investment-boosting, confidence-boosting report. But for now, we are joined by Gopal calling us from Mumbai. Let's connect with him. जी गोपाल जी, आप लाइन पर हैं? जी सवाल पूछिए हमारे एक्सपर्ट शिशिर जी से। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे कंपनी ने टीडीएस काटा, ये तो मैंने आईटी में क्लेम करने को गया तो पता पड़ा कि टीडीएस उन्होंने पुटअप ही नहीं किया है। कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी बोला हम लोग आपका रिफंड कर देंगे। तो ऐसे ही वो दिन निकालते जा रहा है। मेरे पास कोई ऑप्शन है कि भाई मैं टीडीएस को कैसे वसूल करूं उससे? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत बिगड़ा हुआ है, यानी कि मेरे पास जो 1000 रुपए का एक मेरा शेयर लिया है जो आज वो 15 रुपए चल रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि आपकी कंपनी ने आपका टीडीएस काटा और वो टीडीएस उन्होंने जमा नहीं कराया, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है आयकर विभाग। आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो है आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इस चीज के कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक शिकायत दर्ज कराएं और उस शिकायत में जिस नंबर से काटा गया है, अगर आपके पास फॉर्म 16 आया हो जिसमें पैन का जिक्र हो, तो वो आप उसमें डिटेल्स दे सकते हैं कि ये काटा गया है, तो आपको उसका जो कहा जाए कि रिफंड या फिर आपका जो क्रेडिट है वो मिल सकता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि एक खास कंपनी के बारे में जहाँ पे आपने कहा कि 1000 रुपए का था और वो 2 अंकों में आ गया है, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, शेयर बाजार को लेकर के कोई भी भविष्यवाणी करना वो खतरे से खाली नहीं होता है। तो मेरी राय ये है कि जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा सा भी उसमें बढ़ोतरी दिख रही है, जो कुछ भी आपको लगे कुछ आपको पूंजी जो आपकी मूल पूंजी उसका कुछ हिस्सा वापस आ रहा है, उनसे आप बेच करके निकल लें, इंतजार ना करें। इसी बीच गाजियाबाद से हमारे कॉलर हैं राजेंद्र जी, आप नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, राजेंद्र नमस्कार जी। नमस्कार, आप प्रश्न पूछिए। मैं चाहता हूँ कि जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खाता जो राजेंद्र जी, माफ कीजिए, आपके पास जो रेडियो सेट है उसकी वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए क्योंकि वो इको हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अब सवाल पूछिए। सॉरी जी पूछिए। जन धन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले गए थे जीरो बैलेंस के, उस धारक वाले को खाता में उन्होंने पैन नंबर तो बनाया नहीं था। अगर वो पैन नंबर बनाने जाते हैं तो क्या उनको उनके लिए पेनल्टी लगने के चांसेस हैं? क्योंकि उनका तो खाते में जीरो बैलेंस का जो अकाउंट है सरकार की तरफ से खुलवाए गए थे और गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जो इन्होंने अभी तक पैन नंबर बनाए नहीं है। ऐसे में क्या सोल्यूशन हो सकता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया था, जब पैन उन्होंने बनवाए ही नहीं, उन्होंने रिटर्न दाखिल करने का कोई उनके पास जरिया ही नहीं। जी क्या कर सकते हैं? राजेंद्र जी, देखिए, आप जो जनधन खाते की बात कर रहे हैं और जहाँ पर पैन नहीं है, अगर नया पैन बनवाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए एक आवेदन जो है वो ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जो कि इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और इसके अलावा कई एजेंसीज हैं जहां पर आप जाकर के पैन बनवा सकते हैं, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। और जहां तक लिंक कराने की बात है, ये बात सही है कि 30 जून तक जिनके पास आधार था उन्होंने लिंक नहीं कराया है तो उनके लिए परेशानी है। लेकिन जिनके पास पैन है ही नहीं लेकिन आधार है और पैन कार्ड इश्यू ही नहीं हुआ है, तो अभी के समय में जब भी वो पैन कार्ड बनवाएंगे वो लिंक हो जाएगा, उससे कोई परेशानी की बात नहीं। All right, we're now joined by Jagmal Singh calling us from Delhi. जी जगमल सिंह जी, सवाल पूछे। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शिशिर जी, मेरी वाइफ के AIS में जगमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज।
चलिए आगे बढ़ते हैं. I think we'll give him an opportunity to call us again. Shishir, we have next Jitendra online, and he's calling us all the way from Rajasthan, Jaipur to be specific. Yes, Jitendra ji, please ask a question. Yeah. हेलो. जी. हेलो जितेंद्र जी, सवाल पूछें. हाँ, थैंक यू. हाँ, अच्छा, अभी मैडम की क्या नाम है, कौन सा सेक्टर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? यानी कि आप जो शेयर बाजार में लगाने की बात कर रहे हैं उसमें क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं. देखिए, इस समय में अगर आप कैपिटल गुड्स यानी कि जो भारी मशीन बनाती हैं कंपनियां या फिर जो बुनियादी क्षेत्र में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इनके लिए संभावनाएं काफी बेहतर है क्योंकि काफी बड़ा निवेश इन क्षेत्र में किया जा रहा है. दूसरा जो तीसरा जो क्षेत्र होगा वो है वित्तीय क्षेत्र. खासतौर पर मैं अगर सरकारी बैंक की बात करूं, वहां पर भी निवेश करना बेहतर हो सकता है. तो ये 2-3 क्षेत्र हैं जिनमें आप लंबे समय के लिए निवेश करें. इसी बीच मुंबई से हमारे श्रोता हैं पंकज. पंकज जी नमस्कार, आप प्रश्न पूछें. पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है? आरबीआई के बॉन्ड. हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी, आप प्रश्न पूछिए, आ रही है आवाज. मैं पूछ रहा था आरबीआई के बॉन्ड्स के बारे में. मुझे पूछना था, ये शायद रिसेंटली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी खोले गए हैं. क्या ये एफडी से बेहतर है और इनको इन्वेस्टमेंट रिटर्न वाइज और इंटरेस्ट रिटर्न वाइज, और इनको अप्लाई करने के लिए क्या कुछ प्रोसेस होता है वो आप बताएंगे तो प्लीज. मुझे लगता है कि जिन बॉन्ड की जो ये बात कर रहे हैं उसमें एक बॉन्ड तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो आरबीआई के जरिए उसके लिए सहूलियत दी जाती है. और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या जो रिटेल जहां पर पार्टिसिपेशन किया जा सकता है, इन दोनों ही जो बॉन्ड्स हैं, इन दोनों में सबसे अच्छी बात यह है कि जो मूल है आपका वो सरकार की ओर से गारंटीड होता है, तो उसमें आपको परेशानी की बात नहीं है. साथ ही साथ जो ब्याज मिलता है वो भी सरकार की ओर से गारंटीड होता है और दोनों ही बॉन्ड की मार्केट में ट्रेडिंग होती है. तो अगर आपको लिक्विडिटी की, अगर आपको नकदी की जरूरत हो तो आप बाजार में बेच करके निकल सकते हैं. हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप 5 साल के पहले आप निकलते हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा. 5 से 8 साल के बीच में निकलते हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन 8 साल यानी कि मैच्योरिटी या मियाद पूरी होने पर निकलते तो आपको कोई भी जो मुनाफा होगा उससे कोई टैक्स नहीं देना होगा. सरकारी बॉन्ड की जो बात है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बॉन्ड की बात जो है, उन बॉन्ड्स में आपको ब्याज की दर जो है वो अलग अलग मियाद के अलग अलग होते हैं. सबसे ज्यादा जो इसमें प्रचलित है वो 10 साल का बॉन्ड होता है जिसपे लगभग 7% की दर से ब्याज मिलता है. वो पूरी तरह से टैक्सेबल है. लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसमें ब्याज और मूल की गारंटी जो है वो सरकार की ओर से दी जाती है. रहा सवाल कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट से वो कितना आकर्षक है, तो आज के दिन में बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट में ब्याज दरों में थोड़ी कमी दिख रही है. तो आप इन दो जो बॉन्ड्स हैं इनमें आप विकल्प देख सकते हैं. Right. Let's go on to Bengaluru, and we have N.R. Prasad ji joining us. Please ask a question, Mr. Prasad. Yeah. Hello. Hello. Yeah, please ask a question, Mr. Prasad. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. गुड इवनिंग. This is N.R. Prasad from Bangalore. Mm-hmm. Mr. Sinha, 2 questions. Actually, in the last 5-6 trading, Sensex rallied 2,300 points. Okay, now in which sector gained most out of this 2,300 rally? Which sector gained most, and can we invest further on those sectors? My second question is on the IT, which you had replied some time back. Now, while filing the IT returns for the current financial year, 2022-23, the assessment year, 2023-24, my short-term STCG is more and LTCG is less. But I also have a carried forward of the LTCG. Can the difference of this, which is the system is taking, can I adjust to the carry forward of the LTCG? Thank you. These are my 2 questions. Okay, coming to your first question, that these sectors have done well during last 5-6 trading sessions, where you rightly mentioned that the Sensex gained almost 2,300 points. Of course, we are seeing good performance in terms of infrastructure sector as well as the financial sector, and some buying is also being seen in the IT sector because of
better performance, and there are expectations that some countries, especially in the Western world, may increase the outlay. So that expectation is there, which is why we are seeing some buying in the IT sector also. FMCG, as usual, it is normally it is doing. And then, of course, as I was mentioning just before your question about the infrastructure sector, because of the higher spending which the government is proposing during the current fiscal, this particular companies related to the infrastructure sectors are doing well. Now, coming to your second part about the income tax return filing, you rightly mentioned that for AY 23-24, the return is being filed, which is related with the fiscal year 22-23. And in terms of the short-term capital gain and long-term capital gain, if you can remember, I did mention about that, which are the things where one can be adjusted against the other one. So short-term capital gain can be adjusted against short-term capital loss, but not in terms of the long-term capital loss. So this is the position which you should remember before filing the return. इसी बीच अलीगढ़ से हमारे श्रोता हैं जितेंद्र जी, नमस्कार। मार्केट मंथ में आपका स्वागत। प्रश्न पूछिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार, प्रश्न पूछिए जितेंद्र जी। और मेरे 3 सवाल हैं। जी पूछिए। पहला सवाल तो मेरा ये है, जैसे विकसित राष्ट्रों में शिक्षा फ्री है, कि हमारे यहाँ भी ऐसा कोई फंड का प्रावधान है कि जो गरीब वर्ग है, बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो? जी, सेकंड सवाल जी। हाँ, सेकंड सवाल मेरा यह है, जैसे मानसून का पीरियड चल रहा है, इसकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तीसरा सवाल मेरा यह है, जैसे इंडस्ट्री एरिया में हम कहाँ पर हैं, या पेशेवरों के ऊपर, पेशेवर की क्षेत्र में हम आगे हैं कि या पीछे हैं, कि इंडस्ट्री एरिया हम कहाँ पर हैं, इन पे प्रकाश डालें। सर नमस्कार। ओके, देखिए, जो आपका पहला प्रश्न जो है कि शिक्षा के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आपको पता होगा कि शिक्षा का अधिकार भी हमारे यहाँ लागू है, जहाँ पर एक खास उम्र तक के और खास क्लास के बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम भी किया जाता है। आपको पता होगा कि कई सरकारी विद्यालयों में जो है वो बिल्कुल ही करीब कह लीजिए कि मुफ्त नहीं होता है, उससे मिड डे मील और बाकी तरफ दूसरे तरह की सुविधाएं भी उसमें दी जाती है। तो शिक्षा को लेकर के स्थिति बहुत जगहों पर सुधरी है, और खासतौर पे गरीब तबके की बात करें या जो निम्न आय वर्ग के लोगों की बात करें, उनके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, यदि वो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल से पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ऊंची फीस देनी होगी, लेकिन वहाँ पर भी जो EWS का होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए बिल्कुल ही रियायती फीस पर जो है वो शिक्षा मुहैया कराई जाती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था मानसून को लेकर के, देखिए अभी तक की जो स्थिति है उसमें कहा जा रहा है कि मानसून सामान्य रहेगा। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें मानसून की सबसे बड़ी बात यही होती है कि चाहे हम कृषि की बात करें, उद्योग की बात करें, सेवा क्षेत्र की बात करें, तीनों ही जगहों पर मानसून की अपनी अपनी भूमिका होती है। अगर कृषि क्षेत्र आगे बढ़ता है तो उद्योग जगत में उत्पादन की प्रक्रिया आगे तेज होती है, सेवा क्षेत्र से मांग बढ़ती है। तो मानसून अभी चूंकि सामान्य रहने की बात कही गई है, तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। तीसरा जो आपका प्रश्न है कि पेशेवर या उद्योग, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप शायद सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के बीच के अंतर को जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लोग जो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GVA जो हम लोग देखते हैं, उसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 53% है और उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 17% है। उद्योग की हिस्सेदारी कम है, लेकिन रोजगार के सबसे ज्यादा मौके उद्योग में बनते हैं और वो सेवा क्षेत्र के लिए भी मौका मुहैया कराता है। तो अभी के समय में उद्योग में संभावना है तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा है, लेकिन हाँ, सेवा क्षेत्र अभी काफी अच्छी स्थिति में है। खासतौर पे जो कोरोना के बाद जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिला है, जिस तरीके से हवाई यात्रा को बढ़ावा मिला है, रेल यात्रा को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें काफी तेजी देखने को मिल रही है। उसका असर सेवा क्षेत्र पर पड़ता है। And to add to what you are saying, Shishir, actually, when you talk about education, a lot of our education, which the government is providing, is hugely subsidized. Whether you see the government schools or you have a Delhi University as an example, we even have higher education institutions like IITs, which are
quite hugely, substantially subsidized by the government, and a lot of people can afford them. So let's move on to the Sensex now. Oh, okay, we have A.S. Jaina joining us from Noida. जी जैना जी फटाफट सवाल पूछें आप। जी मेरा सवाल ये है कि इवन अच्छे स्टॉक्स भी हमारे जो केमिकल सेक्टर में है वो आजकल अच्छा नहीं कर पा रहे, कोई स्पेसिफिक रीजन? शिशिर, हेलो जी, लगता है हमारा संपर्क थोड़ा उनसे नहीं है, लेकिन इसी बीच हम घरेलू शेयर बाजार का हाल जान लेते हैं। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,350 अंक के करीब बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,350 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 64 अंक या 0.10% बढ़कर 65,344 पर बंद हुआ। निफ्टी 24 अंक या 0.12% बढ़कर 19,356 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.3% की गिरावट आई। Key domestic indices today closed with marginal gains amid mixed global cues. Sensex at the Bombay Stock Exchange ended near 65,350 mark, while Nifty at the National Stock Exchange settled above 19,350 level. Sensex rose 64 points or 0.10% to end at 65,344. Nifty added 24 points or 0.12% to finish at 19,356. In the broader market at the BSE, the mid-cap index shed 0.5%, while the small cap was down by 0.3%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 9 firms appreciated, while 21 depreciated. Among the top gainers include Reliance, which inched up 3.8%, followed by Tata Steel that climbed 3.4%, and Bharti Airtel jumped 1.6%. On the other hand, Titan declined 3.2%, HCL Technologies slipped 2.9%, and Power Grid fell 2.2%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors witnessed losses, while 5 logged gains. The metal surged 1.8%, followed by energy, which jumped 0.6%, and service scaled up 0.3%. While consumer durables lost 1.6%, information technology sector slid 1.2%, utilities plunged 1.1%. The overall market breadth was negative as shares of 2,200 companies declined, while 1,473 advanced. A total of 157 shares remained unchanged. विदेशी मुद्रा बाजार में जी रुपया का हाल जान लेते हैं। तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये और 57 पैसे पर बंद हुआ है। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 102.40 पर कारोबार कर रहा था। थोड़ा श्रोताओं को एशियाई और यूरोप के बाजारों का हाल भी बता दिया जाए। जी बताइए। एशियाई बाजार आज मिश्रित रूप के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंग सेंग 0.6% बढ़ा, सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स इंडेक्स 0.3% बढ़ा, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.2% बढ़ा। जापान का निक्केई 0.6% फिसल गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% गिर गया। दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजार सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.2%, जर्मनी का डैक्स 0.4% और फ्रांस का कैक 0.3% बढ़ा। Shishir, going back to the rupee, hello. Yeah, please. Yeah, we got disconnected for a while. When you go look at the rupee, it's been hovering around 82 rupees against the US dollar. How do you view that? What effect does it have on the Indian economy? See, at this moment, I believe when the market is going up, it will have a positive impact on the rupee. That means it will appreciate against the US dollar. So since for the last 5-7 sessions, we have seen good increase in the stock market, and at the same time, we are seeing that the investment is also picking up. So there will be some impact on the rupee. However, we need to be very cautious about any kind of Federal Reserve movement in US, because if that happens, that means that more and more
selling will be there, and that would result some impact on the rupee. But at this moment, that apprehension is very low. The rupee seems to be on a right track, and the current valuation appears to be the right one. In terms of impact of the economy, of course, when the rupee is appreciated, that means the importer will have to pay more, and when the rupee is depreciated, that means the exporter will earn more. So it's a kind of mixed thing for the trading thing. But at this moment, I believe that the rupee will move in the current range, which you mentioned. Our exports had gone up quite a bit, but then there was a fall. How do you see our exports, Indian exports, going because of the recession in Europe and US going through inflation and so on? Yes, Shishir. It's a very good thing because any increase in export will have a direct impact on the manufacturing sector. At this moment, when we are talking about growth in manufacturing sector, and if the export is picking up, that means the manufacturing sector will pick up. And one indication which we track for the performance of manufacturing sector is the Purchasing Manager Index for the manufacturing sector. For the last 3 months, we are seeing it is slightly on a declining path, but still in the expansion mode. Mm-hmm. And the another good thing about that, the job creation is there. So export is picking up. That's a good sign, not just from the overall manufacturing side, but the most important job creation point of view. जी, आज की जो रिपोर्ट है कि उभरते बाजार में चीन को भारत छोड़ रहा है पीछे, और दूसरा ये है कि 2075 तक, ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए, 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है कि हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है, और अभी के समय में अगर 3.5-4 लाख करोड़ रुपया या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हम कह रहे हैं, तो अगले 5 साल 7 साल में अगर ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और जिस तरीके की आर्थिक परिस्थितियां अमेरिका या दूसरे देशों में दिख रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले कुछ All right. Thank you, Shishir. We are running short of time. Sorry to cut you short there. Thanks for all your views and reviews. Let's move on to oil, friends. Well, oil prices dipped today after weak economic data from top consumers, the United States and China. The expected crude supply cuts from Saudi Arabia and Russia limited losses in intraday trade. Brent crude was trading at $78.07 a barrel. और अब CX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने की कीमत में 158 रुपये गिरावट आई है। सोना 58,664 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था अंतिम समाचार मिलने तक। सितंबर अनुबंध के लिए चांदी 119 रुपये की गिरावट के साथ 71,191 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Before that, let's remind you of the headlines. India will surpass US to become world's second largest economy by 2075, says Goldman Sachs. Key domestic indices close with marginal gains amid mixed global cues. Sensex ends near 65,350 mark, while Nifty settles above 19,350 level. And rupee appreciates 17 paise to close at 82 rupees and 57 paise against the US dollar. That's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Vibhuti Mishra, signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.